So I will take another 10 minutes for a brief presentation, and then Minister will address you in about 20 minutes. So I'll start off with my presentation. Thank you. This is basically, I know all of you have done a lot of wonderful jobs, so just to make you put you in perspective only, that's what this presentation is there. I'll go very fast in this. Okay. Next one. Okay, this campaign, as all of you are aware, was launched by the Honorable Prime Minister on 22nd March. Many of you, collectors also were participated in that, and we had PM interacted with 5 sarpanchs of 5 different states also, and we had asked them to conduct the Gram Sabhas. Many of the states have done it. I am actually extremely happy to see many states have reported the conduct of Gram Sabha, and extremely surprised and very happy to hear from Jammu and Kashmir also a lot of Gram Sabhas were conducted. Many sarpanchas also, when we met them, said that they had participated in the event. And PM also written a letter to sarpanchas and also to the chief ministers, as I mentioned here. Next one. This is a launch of the event. Next one. This is a letter which the Prime Minister had sent it to the sarpanchas. And for the regional states, we had actually translated and given in the regional languages also. Next one. This is a letter which they had sent to the PM had sent it to the chief ministers of the states. Next one. Okay. In his Mann Ki Baat on 28th February, PM mentioned that Jal Shakti Abhiyan Mantralaya will launch a campaign, Catch the Rain. Next one. With the tagline, Catch the Rain, where it falls, when it falls. So basically, this campaign is a decentralized storage of water. Much different than to the earlier way of storing water, which we used to do in the form of dams. And we used to take a lot of water to one area, constructed big dams, and then had a lot of environmental issues with that. So this is a decentralized storage of water to involve people, and that's why the campaign has been designed. This is a continuation of the Jal Shakti Abhiyan, which was done in 2019. In that, we had 1,592 blocks out of 2,836 blocks. Out of 225 water stress districts were taken up. So if you look at the figures in your states, 218 blocks in 29 districts were taken up in Rajasthan last year, the last Abhiyan. 137 blocks in 24 districts in Telangana. 15 blocks in one district in Jammu and Kashmir, and 7 blocks in Goa. So I hope the presentation is visible. Is it visible? Good afternoon, sir. It's not visible, sir. Presentation is not visible. Which state is this? Sir, this is Jammu and Kashmir, sir. I'm Deputy Commissioner, District Riyasi. It's not visible in Jammu and Kashmir. What about Sir, it is not visible in Rajasthan. I am speaking from Jhunjhunu district magistrate. Okay, fine. Why it is there? Okay, anyway, I think technically they'll make it. Anyway, nothing. I am just showing you the. See, we had 218 blocks in Rajasthan last year. Okay, and this time Jal Shakti Abhiyan is in all rural blocks and urban areas of the country, and it is from next one. Next one. Okay, this is basically the Catch the Rain campaign is basically to nudge the. Okay, it is to create appropriate rainwater harvesting structures suitable to climate and soil conditions with people's active participation. Basically, because what is suitable in Rajasthan may not be suitable in Jammu and Kashmir. To ensure that appropriate rainwater harvesting structures suitable to the climatic conditions we have to make with people's active participation. The theme is Catch the Rain, where it falls, when it falls. Another way of putting it is not a drop from a compound. So, जितना पानी आपके compound में आ रहा है उसको वहीं पे संभाल के रखना है. हिंदी में अगर बोलेंगे तो इट्स घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, और गांव का पानी गांव में. In this campaign, we have 5 major thrust areas. One is, of course, the most important is the catching the rain harvesting rainwater, maximum rainwater and saving it. Second is enumerating, geotagging, making inventory of all the water harvesting structures. We'll all come to that in detail later on. Preparing a scientific plan and preparing a water conservation plan and setting up of Jal Shakti Kendras and
generating awareness and ensuring people participation. Next one. First we'll go. Okay. This is, we have actually sought cooperation from the states by writing letters to the chief ministers. We had meeting with chief secretaries, as also held meeting with the municipal commissioners of more than 5 lakh population municipalities. Next one. And this is, as I said, a series of meetings with the district magistrates of the countries are done. So we have already completed almost 20 district states have been completed. 5 more states are coming today with now view. So with all your cooperation, despite the COVID presence, despite the drive of vaccination, we have done a lot of good work in the last 3 months particularly. Almost 28 lakh water harvesting structures have been completed. And at the cost about 41,000 crore work has been done from Manrega alone. There are work done under the municipal funds, Gram Panchayat funds, local funds, etc. That's in addition to this. So 41,000 crore work, approximately numbering about 30 lakhs have been done in the last 3 months, which is a huge contribution to conserve the rainwater. Next one. Okay, there are 5 pillars, as I said. One is the rainwater harvesting structures. Next one. So basically, why we should catch the rain? Because the sufficient rainfall is there in the country. आंकड़े बताएंगे तो Delhi में, if you the 620 12 mm rainfall is annually is there. This year it has gone beyond that, and if the total area and the total waterfall, if you calculate it, we can get as much water as sufficient to provide 148 liters per day per person in Delhi. That's a huge quantity of water which we can get it if you harvest 100% rainwater. So at least from 10% we should increase to 50% of harvesting of rainwater, which is otherwise going waste in the ground. And next one. So we have to keep our vessels ready or to catch maximum natural vessels to catch the rain. Next one. This is a photograph of a water harvesting tank, underground tank constructed in Japan. You can see the small people, 1 inch size of people, and the structure size, which is very huge. This is a structure built underground in Japan to store a huge rainwater, quantity of rainwater. But that is not possible in India. So we go for the typical traditional way of catching the rainwater using ponds and tanks. Next one. So why we catch the rain? Because a lot of water is going down. We only catch 10% of the water. But we also have, if the water table going up, we can reduce the cost of pumping, cost of energy, we can save, we can improve soil moisture. And the side effect of it is the tremendous reduction in the urban flooding and waterlogging, which can lead to a lot of, which leads to a lot of havoc now when the rain comes. Because of high intensity rainfall, a lot of rain comes, and that creates a lot of havoc in the countries. So that can also be to a large extent mitigated if we can decentralize and store the rainwater. Next one. This is the what are the natural vessels? Rooftop rainwater harvesting structures, water harvesting pits in all compounds. As I said, mentioned before, it is not a draw from my compound. And repair of existing check dams and ponds, because this is one very important point, because so many years we have constructed many check dams but which are not maintained. So that's the problem. Maintenance is an issue. Another important thing is removal of encroachment from tanks, desilting of tanks to increase the storage capacity, removal of obstructions in the channels which bring water to them, and the repairs of traditional step wells and rainwater harvesting structures. This has to be taken up. And use of old bore wells. In many of the places we have old existing wells which can be used to recharge the water structure. Next, fast. Okay. With all this to be done with active participation of the people. वहाँ पे मंत्री जी का और कर देना. ठीक है. Okay. Next one. So we are requesting the local administration to ensure rooftop rainwater harvesting structures in all government buildings, particularly Anganwadi centers, schools, PSCs, etc. Please do that. Money is available under Manrega. Manrega provides for this funds to be used for rooftop rainwater harvesting structures. Please do that. Identify structures which are needing maintenance, which have been already constructed. वो भी करना है. और appropriate rainwater harvesting structures बनाना है.
और अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. ये अगर हम रिवर्स को रिजुविनेट करेंगे तो हमारा अविरल धारा, वो कभी कभी देखा जाता है कि वो पानी बहते नहीं है नदियों में, बारिश के टाइम में बहते रहते हैं, उसके बाद वो सूखा पड़ जाता है. अगर हम स्ट्रीम्स को रिजुविनेट करके रखेंगे तो कम से कम मिनिमम फ्लो विल बी ऑलवेज बी देयर. सो रिजुविनेशन ऑफ streams and nalas are also very important. Then revival of wetlands. Wetlands soak up a lot of water. तो काफी जगह पे wetlands का encroachment हुआ है, उसको हटा के wetlands को revive करना है. And the last and important point is काफी जगह पे flood banks में encroachments है, उनको भी हटा के water bodies का encroachment से हटाना है और channels का encroachment भी हटाना है. This is the first aspect of the Catch the Rain campaign, rainwater harvesting. Next one. So next one important is to prepare and update inventory of water bodies and preparation of a scientific plan. First, next one. So basically, we are requesting you to enumerate all water bodies referring to old revenue records. अगर पुराने 1950 का, 1960 का, 1970 का पानी को चेक करके आपको इसको आइडेंटिफाई करना है and the boundaries को earmark करना है and geotag them and update in the portal. We are to help you out. We are actually populating the information and giving to you. आप उसको verify करके अगर उसमें edit करना तक चाहते तो edit करके आप उसको update करा दीजिएगा. Next one. इसका details हम advice साहब बाद में बताएंगे after the minister's address. And आपको आपकी मदद के लिए we are giving about 2 lakh rupees to each district for preparing the GSI map and water conservation plans. काफी लोगों ने अपना accounts भेजा है. We have given them money to them. So in case we have not sent your official account number, please send it to us. We will give you the money for this 2 lakh at least to set this water conservation plans up. And then next one. Okay, next third important point is very important is the updating of the data in the portal. ये पोर्टल हमारा है JSACTR.MOWR.gov.in, which is जल शक्ति अभियान Catch the Rain .ministry-of-water-resources.gov.in का पोर्टल है. उसमें you can do it. It contains information on the works done as well as on the water bodies in the district. So water harvesting structures are taken up under Manrega, CSR, local funds, by urban bodies, by forest department, NGOs, religious institutions, सब आना चाहिए. See, we are not concerned about just the works done by the government funding. हमको पानी से मतलब है जितने भी पानी हम इकट्ठा करके संग्रह करके रखेंगे उसी का हिसाब चाहिए. इसलिए जो भी वर्क्स अगर आप लोकल फंड से भी करते हो, एनजीओ से करते हो या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस करते हो, उसको इसमें इंक्लूड कीजिएगा. एंड टू हेल्प यू टू पॉपुलेट द डेटाबेस, we are actually putting up the information of all the works done under the central government schemes like Manrega and Amrit etc. बाकी आप उसको देखे अगर उसको कुछ मिसिंग है तो आप ऐड कर सकते हैं. And there is also provision for sending photographs and videos and for information exchange. अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी information exchange के लिए इस पोर्टल में प्रावधान है. Next one. So as I said, works के बारे में बता रहे हैं. It is all works from the central government funding, we are populating it, but works done in the urban areas, because Manrega is in the rural area. Urban area में जितने काम हो रहा है, अमृत से हो रहा है, उसका अपडेट होता है, but other municipal fund से या corporate अपने fund से जो काम हो रहा है, उसी का record नहीं हो रहा है. So please ensure that that is added by the district collectors or the state nodal officers. For that, actually, DC can or DMs can take the help of a DIO or appoint a person to do entry and GIS mapping. हमने तो मैंने बताया 2 लाख रुपए दे रहे हैं, उसी को यूज कर सकता है. आपका login IDs and password, we are send it to state nodal officers or send it by this email address JSACTR-nwm.gov.in. उसी में we are send it. अगर नहीं मिले तो contact us. We'll inform you the addresses and password. Next one. So this is the second part is about the database of the water bodies. ये भी हमने तैयार करके पॉपुलेट करके दे रहे हैं, बट उसमें अगर आप थोड़ा मिसिंग है तो कैन ऐड इट. We have made a mobile app, Jal Shakti Abhiyan CTR app has been developed. It is available in Google Play Store.
उसको download करके you can use it for uploading the geotag information on the water bodies, and trainings are being organized by NIC. काफी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट्स में ट्रेनिंग हो चुका है. अगर आपके कोई डिस्ट्रिक्ट छूट गया है तो we can organize training program. If you want once again also we can organize training program with NIC. Next one. Oh, this is the portal. ऐसे दिखता है opening page में. Next one. This is the dashboard. It has information. If you see, there are about 65,000 photographs added up today, and about 157 videos have been added. So आप अपने photographs और videos भी add कर सकते हैं. You see, there are 13 lakh water bodies का information available है. So आप जितने भी information available है, आप add करते जाइएगा. And please visit this website. आपका login और password भी दिया हुआ है. Next one. So this is the photograph of the water bodies details. The photograph है, उसका health of the water bodies है. All these things can be added to that. Next one, fast. So next important is setting up of JSACTR Kendras. Next one. This is basically because in the district water is divided into various departments. So many departments handling it. So there is no single information available. So JSACTR Kendra is meant to help collectors to get a single point information system on water, and this will be a knowledge center for all water related information in the district. Next one. It will provide technical guidance on construction of rainwater harvesting structures, because काफी जगह में लोगों को पता भी नहीं कौन सा rainwater harvesting structure बनाना है. So they will give information on the rainwater harvesting structures. It will have contained all water related information, crops, irrigation systems, groundwater level in blocks, rainfall, flood management. So basically this will be a information center for on water related for all the public. It will not handle any funds. It will only have information on that. To start with, it can just be a mobile number with wild publicity, and the person who's sitting with the mobile will get information and pass on to the information. And we also suggested a common logo for each EC identification. Next one. This is the the logo, and these are some of the pictures of the JSACTR Kendras opened. And the last is important is awareness generation. There's Mandega, this Nehru Yuva Kendra, people have started an awareness generation program. Almost 2.27 crore people have involved in that from November onwards. I'm sure that you are also aware, collectors are also aware of the work being done by the Nehru Yuva Kendra. And we have prepared a series, a bank of IEC materials, Nukkad Nada ke liye, e-poster के लिए, सोशल मीडिया में पोस्ट डालने के लिए, ट्विटर के लिए, सबका इंफॉर्मेशन अपने लोकल लैंग्वेज में तैयार करके इस पोर्टल में लिखा है nwm.gov.in/cash-to-rain. IES materials available है, आप उसको यूज कर सकते हैं. And I request the DMs to create appropriate bus in this district. Last two slides. Okay. So this is what the Nehru Kendra is supposed to organize. Puppet show, Pravat Berries, go on. Okay, go on. And then here comes the district. मेरा request है DM से 2 slides ही बचा है. एक तो maximum rainwater harvesting structures बना के maximum rainwater को संग्रह करना है. All these works, the structures में बताओ यहाँ पे भी, rooftop rainwater harvesting structures, traditional rainwater harvesting structures को सुधारना है. Set up JSACTR Kendras in all districts. Tree plantation अभी तो time आ गया, ऐसा afforestation का भी है. And the last point is that we should ensure that we started off with the Gram Sabha on 22nd March. We will end with the Gram Sabha on 30th November, where the works done in the last couple of months will be showcased to the people, and so that they also have a idea of what was the work done, and they can also audit about that. So we should organize the Gram Sabhas on 30th November. That's the last slide. Next one. Next one. And we also plan to give prizes for the best collectors and districts which done a lot of work. So please, आप अपना works जो किया है उसको upload कर लिया portal में. And second, and the last important point is updating the portal data. Very important. आप अपना works जो state funds, local funds और NGO से कर रहे हैं, उसी का updation करा दीजिएगा. Urban bodies का water, we are not getting that. That also has to be done. And please see the email sent from this address JSACTR-mwm.gov.in. उसमें बहुत सारे details दिया हुआ है, आप उसको use कर सकते हैं. आपका media reports, pictures also आप share कीजिएगा. Next one. So that's what state nodal officer also हम वही request करेंगे, आप इसको use करेंगे. Next one.
And these are some of the activities which we are doing. Go ahead first. So these are meetings which we have done in various parts of the country. Here, this is an occasion where collectors se hum baat karte rehte hain, awards dete hain, local NGOs ko. These are some of the activities which go ahead. So some of the activities we have done for IEC activities. And aapke taraf se bhi, please continue with the good work we are doing and ensure that maximum rain is collected and good reporting is done. Thanks a lot. I will take, my time is over. My minister will be joining in 5 minutes. With 5:30 he will address all of you. And I request Sridham Vedre ji to continue with the proceedings. Sridham Vedre ji is our advisor to the minister. Sridham ji? Very good evening to all the senior officers of the states and also the district magistrates. Honorable Minister will be joining us in about 5 minutes. So meanwhile, I would like to quickly do a 5 to 7 minute presentation on the scientific preparation of the water conservation plans. And I am just sharing the PowerPoint presentation. Please hold on. श्रवण वहां से प्रेजेंटेशन ऑफ कर दो डेस्कटॉप से. So as Ashok ji mentioned, basically under the JSACTR Abhiyan campaign, under the Catch the Rain campaign, the first basic and fundamental thing that we are trying to emphasize with the district magistrates and all the states is to prepare the GIS based water conservation plan and also prepare a GIS based inventory of water bodies. I hope all of you are able to see the presentation. All the states able to see the presentation, please? Are the states able to see the presentation? No, sir. No, sir, we are not. Okay. Bear with us. In just a minute, we are connecting. No, but they are not able to see. बोलते जाइए. 5:30 हो गया. क्या हुआ? So what about now? Are you able to see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's good. That's good news. If you know, we are trying to reconnect the presentation, so in a minute or so you all can be able to see it. If not, anyway, we are going to share the presentation with you all. So I'll just go ahead. Next slide. See, the basic thing under this campaign, which we are trying to emphasize, is that we prepare the district, block and village level water conservation plans. And this is something where, you know, we have to start with a top-down approach and try to make the plan first. And whatever works or whatever activities we have been doing so far, they all should form part of this grand plan. So once we prepare the plan, then our idea, our hope is that, you know, our plan is to renovate and repair the already existing water bodies or structures, and then plan for new construction of new water harvesting structures and water bodies. Next slide. So for preparation of scientific GIS based water conservation plans, five things which we want to emphasize is that there should be a scientific basis to prepare the plan, and we should balance between the supply and demand sides. You know, the supply is the water source, generation of the source, and then the demand side augmentation is also needed. And then we should adhere to rich to valley watershed approach while preparing the plans. And then we should be able to use a GIS based technologies to prepare the plans. And finally, converge all the activities of all the related water management departments in a given district. And while preparing the plans,
Utilization of GIS and RS technologies, the GIS and remote sensing technologies is very fundamentally important. And by using those technologies, we first identify the existing water bodies and water harvesting structures in a given district, block or village. And once we do that, then once we inventorize those structures, then we plan to renovate or repair those things wherever it is needed. And second part of the plan is to identify locations for new structures and then construct them. So these are the two steps involved. Next. So while identifying for identification and preparation of the inventory of existing water bodies and water harvesting structures, we have already sent some guidelines to all district magistrates, where we have requested them, the first and foremost thing that we would request the districts to do is to look for their specific district, block, village level data in the Government of India web portals like the India Varis and the Bhuvan, etc. Bhuvan is a portal, Government of India portal, and India Varis is an application, web-based application, where you have the whatever data pertaining to your area, please download it from our websites, our portals. The second is use the Google imagery software from, and try to have your GIS expert at the district level to actually use those Google imagery software and try to inventorize the existing water body structures. How to do it? I'll show it in the next few slides. And by doing this software processing, utilization of the GIS based technology, what will happen is in the process will save a lot of time, and all the existing water bodies can be covered without any glitch of data. Next. So what I would request all the district magistrates to consider is immediately hire a GIS expert if you already don't have a GIS expert working at your district. Once you hire a GIS expert, have him use the Google imagery software and try to geotag all the existing water bodies or water harvesting structures in your area. And you are able to see on the screen how to do this. Basically, you will identify the structure and basically try to capture its capacity and its submergence area, etc. It is very easily done using the Google imagery software, and start inventorizing the existing bodies. Next. Once you do that, then ask your GIS expert to prepare a KMZ layer of all the points that have been enumerated. He will know what a KMZ layer is. Basically, it is a type of file, a type of a protocol or a file that will be prepared using those GIS based locations, and he would submit it to the district magistrate. And the district magistrates are requested to give this KMZ layer file containing all the enumerated bodies, the locations of those water bodies, and hand it over to your engineers of your various water management related engineering departments. And you have water resource department, public health engineering, watershed, Mahatma Gandhi Narega department, Panchayat Raj, rural development, forest, agriculture, horticulture, Panchayat Raj, rural development, all these things. So you have engineers represented from these departments and hand over the KMZ layer file to them. Next. Once you hand over the KMZ layer to your ground, to your ground engineers, they would be doing a ground truthing of whatever locations have been identified by your GIS expert. And this ground truthing is to be done by using a mobile application that has been made available in the Google Play Store. So we would like all of you to have your GIS expert download the mobile application from the Google Play Store, and then use the mobile application to ground truth and ensure that whatever locations have been identified by your GIS expert actually exist in the field. They would match, mostly 95% they would match, because it is a scientific approach, and we are trying to utilize the science and technology in this, so there should not be any fudging of data. And once these particulars of the structures have been identified by the field engineer, he would capture those things in the mobile application, and then he would also add comments of whether renovation is needed, repair is needed, etc. And in that way, wherever renovation repair is required, you would go ahead with implementing the repair and renovation plans. Next. This is how the mobile application would look like in the Google Store. It's called Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain.
CTR stands for catch the rain. So please go ahead and ask your JS expert to download it, and this is available in Play Store. Next. This is how the login ID of the web portal that have been sent to you would be the same as the mobile, the login credentials for your mobile application. And once your field engineers open this application, all the parameters that you see, I don't want to go through each and every parameter. It has, the various area types and, the department names, the existing types of structures and structure name, who owns it, what is the design storage, what is the present storage, what type of structure, and the design storage versus the existing storage, the longitude, latitude, everything can be captured. And next. And then if you see the last part of it, you can geotag the photograph also. Once you upload the photograph, you have everything captured in through the mobile application, and then you can upload that information. Next slide. Once you capture all the information, you will upload it to our web portal, of the National Water Mission of Government of India web portal. And while this is our experience in Rajasthan, most of the DMs attending from Rajasthan would know what we have done in Mukhyamantri Jal Swavalaman Abhiyan. Basically, this is each department has various types of structures. For example, agriculture, horticulture. There are open wells, tube wells, farm ponds, drips, sprinkler, horticulture, etc. Where the status of source, whether it's functional or dried, and what is the capacity in cubic meters, area irrigated, etc. can be captured. For groundwater department, the type of monitoring station like the piezometer, open well, what is the water table in various months of the year can be captured. Next. For Panchayat Raj, rural development, watershed, forest and WRD departments, you can capture the types of various structures like the hand pump, rooftop rainwater harvesting structure, village pond, talab, check dam, anicut, lake, micro irrigation tank, etc. And whether its renovation is needed or desilting is needed. If needed, what is the cost, probable cost, existing capacity in cubic meters versus the original capacity. All these things can be captured using the mobile application and uploaded to the web portal. Next. So this is for PhD department again, hand pump, open well, tube well, surface storage, water storage structure, whether it is defunct or operational or abandoned, what is the drinking water availability up to the month, what is the quality of water like TDS, chemical, biological, present water level, etc. Next. So once you capture all this information, all the district magistrates and collectors have been requested in the guidelines sent to you to make a detailed inventory of all these water bodies, which is already made by your JS expert and ground truthed by your field engineers. Then you have uploaded all those things to our central servers on a real-time basis or on a daily basis. If there is a web facility available, then do it on a real-time basis, or on a daily basis back up the data and come back to the place where you have the mobile connectivity and upload it. And once you do that, the next step to be done is to mark all the structures that have been marked for renovation and repair. Try to use Mahatma Gandhi Narega funds or ducktail other programs, similar programs, and of the central government or the state government, and utilize those funds, converge those funds and try to make use of those funds to repair and renovate. Next. And the second step to this is the last but one slide. The second step to this whole plan, the scientific preparation of the plans, is that so far you have done inventorizing. We have touched upon, and you will be doing it. The first part of it is to identify the existing ones, and as I mentioned in the earlier slides, inventorize them, ground truth using the mobile app, upload it to the web portal, and then go ahead with the renovation repair plans. The second step to this is you identify the locations for new water bodies and water harvesting locations and try to construct them. So how do you do that? First is the identification of all the drains in your district and make a shape file. What is a shape file? Your GS expert would know it. No worries. He will help you in preparing the shape file. And using either he can use or he or she can utilize the state remote sensing data or ISRO's data or the SRTM 30-meter contour level available data or freely available ISRO's Cartosat data, which is 2.5 meter. And using that, he will prepare the drainage density maps or streams network. The GS expert would know it. Once he prepares it,
superimpose whatever they identified, enumerated already existing water harvesting structures data onto this drainage map. Again, the GS expert would help you. Once you superimpose, you would know what are the untapped streams and drains. Once you know that, the respective engineers of your respective line departments would sit with the GIS expert, identify the locations, feasible locations, sites for their types of structures. And each department engineer would go for either, Anicut or check dam or percolation tank or MIT or staggered trenches or, whatnot. Hundreds of types of structures can be planned, Gabion structures, and each department know what kinds of structures they would make. And then, the locations are identified and the structures have been planned, and then go ahead with the construction of these structures. And you can, once this plan is prepared, once for all, then in the coming few years, you can utilize these plans and the structures identified in these plans, either to renovate, repair, or construct. Either type of the activities can be done in the next few years. But preparation of the scientific plan is the basic thing, which we can do at one time, and preferably this year. That is what our request would be. Next. And Ashokji has already touched upon this Jal Shakti Kendra. Once this data has been captured and uploaded, this is where you would have this data published, have this data cell, this cell at the district level to have interaction between your government departments and your NGOs, your knowledge centers, etc. And then once you have this data, district center, this would act as a nodal center for the Jal Shakti Abhiyan and for other water management related activities also. Next. The last slide, you can cancel. In the last slide is basically, we would request the district magistrates that whatever funding has been given by the Jal Shakti, for the Jal Shakti Abhiyan, under the Jal Shakti Abhiyan by Government of India, National Water Mission or Ministry of Jal Shakti, the 1 lakh, 2 lakhs that have been contributed by us, we would request that you utilize this money for the GIS expert, hiring of the expert, and try to utilize it in procuring the software, etc. Because, this is fundamentally, that is something we would request. But, going forward, more funding might be possible from here, or you can ductile funds from your own funds. And in that way, it is requested that, the preparation of scientific water conservation plans be done, and accordingly, lay a foundation, strong foundation and basis for the two-step process of renovating and repairing of the existing structures and planning and construction of the new structures. So this is the kind of activity that we have planned, and I would invite the Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, who is with us as of now. And this is the end of my presentation, and I would hand over the mic to the Director of National Water Mission, Ashok ji. Thank you. So I welcome Honorable Minister for Jal Shakti, Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, for this meeting with the district magistrates of Rajasthan, Telangana, Jammu and Kashmir, Goa, Dadra Nagar Haveli and Daman Diu. जैसे मैंने बताया, this is a series of meetings we are having, Ministry is having with the district magistrates. So almost 20 districts are over. Now that these 5 states are available today here with us, I request the Honorable Minister for Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat ji, to address us and guide us in this program. धन्यवाद अशोक जी। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स एंड वेयर इट फॉल्स की श्रृंखला में आयोजित आज इस जिलाधिकारियों के साथ में बैठक में, जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा और दमन दीव, इन सभी राज्यों के जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर्स उपस्थित हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं कुछ बात करूं उससे पहले आप सबको बधाई देना चाहता हूं और आप सबका सम्मान करना चाहता हूं कि आप सब ने कोरोना की इस आपदा के समय में अपने अपने जिलों में इस महामारी से आम जन को बचाने के लिए
जनमानस के जीवन को संरक्षित करने के लिए आप सब लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए और सफल प्रयास किए। मित्रों, कोविड की आपदा लगभग अब एक बार समाप्त ऐसी दिखाई देती है। वैक्सीनाइजेशन का काम देश में बहुत तेज गति से चल रहा है और उसमें भी जिस तरह से जिलाधिकारियों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है वो निश्चित ही सराहनीय है। कोरोना की आपदा हालांकि संपूर्ण रूप से अभी टली नहीं है, लेकिन एक बार वो खतरा जिस लेवल पर था वो उस स्तर से निश्चित रूप से अब नीचे आया है। इस अल्पकालिक चुनौती के अतिरिक्त यदि हम दीर्घकालिक चुनौतियां, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस व्हाट वी आर फेसिंग और व्हाट वी हैव, उस सब के बारे में चर्चा करें या चिंता करें तो बढ़ती हुई पानी की कमी या घटती हुई पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और आने वाले समय में जिस तरह का गंभीर संकट पानी का देश में संभावित है, बढ़ती हुई आबादी के कारण से जिस तरह से पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी स्ट्रेस्ड हुई है, जो 5 दशक पहले लगभग 5000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर हुआ करती थी, वो घट करके अब 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास पहुंची है। टोटल क्वांटम ऑफ रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन लगभग उतना ही होते हुए भी, क्योंकि हमारी आबादी 3 गुना बढ़ी है, इसलिए दबाव और बढ़ा है और उपलब्धता कम हुई है। क्लाइमेट चेंज के खतरों को देखते हुए हमारी सिचुएशन और भी ज्यादा वल्नरेबल है और हम सब क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को अपने सामने देख रहे हैं। रेनफॉल पैटर्न्स बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, स्कैंटी इरेटिक रेनफॉल्स होने लगी हैं। बहुत थोड़े समय में एक जगह पर क्लाउड बस्ट होकर के बहुत सारी बरसात हो जाना, फ्लैश फ्लड्स का आना, उसके ग्लेशियर आउटबस्ट होना, ये सब चीजें जो है आजकल निरंतर कहीं न कहीं चर्चा में बनी रहती हैं। इसलिए हमारी चुनौती उस दृष्टिकोण से और भी बड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि भारत में हमारी ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेबिलिटी दुनिया में सर्वाधिक है। आज भी हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 65% एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ड्रिंकिंग वाटर, ये कंपोनेंट जो है 65% कंपोनेंट ग्राउंड वाटर से आता है। और जिस तरह से हम तेज गति से ग्राउंड वाटर का विड्रॉल कर रहे हैं, उसके कारण से हमारी चुनौतियां और भी बढ़ी हुई है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन में से पानी निकालने वाले देश हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर अमेरिका और चाइना जो हैं, उन दोनों का क्यूमुलेटिव जितना हिस्सा निकालते हैं, वी विड्रॉ 150%, मोर देन 150% ऑफ दैट। तो इसलिए हमारी डिपेंडेबिलिटी ग्राउंड वाटर पे होने के कारण से और इस स्ट्रेस के कारण से जिस तरह से ग्राउंड वाटर जो इम्पैक्ट हुआ है, और साइमल्टेनियसली ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो कंप्लीट वाटर इकोसिस्टम था, वो बढ़ती हुई आबादी के कारण से, बढ़ते हुए इरिगेटेड लैंडमास के कारण से, बढ़ते हुए एनक्रोचमेंट्स के कारण से, कैचमेंट एरियाज के में डिफॉरेस्टेशन के कारण से, और जो नेचुरल वाटर बॉडीज थी उन सब के पॉल्यूट हो जाने के कारण से वो बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ है। ये हम सब ने अपने जीवन में, आप सब लोग जिस उम्र के हैं, पिछले 20-30 साल में आपने बहुत बड़ा बदलाव उसमें देखा होगा। इन सारी चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति ऐसा मंत्रालय डिफरेंट डोमेन्स एंड डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट वर्टिकल्स पर, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो सब्जेक्ट डिस्कस होते थे, डिसाइड होते थे, जिनके बारे में पॉलिसीज बनती थी, उन सबको कमोबेश इंटीग्रेट करके एक जगह एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। और 2019 में सरकार में आने के बाद में लगातार लगभग हर प्लेटफॉर्म से जब कभी भी अवसर था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल के विषय में देश में अवेयरनेस पैदा हो, इसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए अपनी बात, अपने मन के बात के माध्यम से या अन्य भाषणों के समय में इस बात को कहा। 2019 में ही उन्होंने इस जल शक्ति अभियान ऐसे अनूठे कार्यक्रम की जो है एक मार्गदर्शन देश के सामने रखा था। और उस समय 256 जिलों में 256 ऐसे जिले
जो देश में सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट जिले हैं, जहां सबसे ज्यादा भूगर्भ के जल की चुनौती है, या जिन प्रदेशों में अगर किसी एक प्रदेश में देखें तो उन प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वे जो है डिस्ट्रिक्ट है, उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनकी भी सारी मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, मोस्ट वनरेबल जो है वो ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनके अंदर एक प्रोग्राम किया गया था। भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव लेवल के ऑफिसर्स और आप ही के जैसे जिलाधिकारी, आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने 2 साल से जो जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों ने उन 256 जिलों में जिनको काम करने का सौभाग्य मिला होगा, उन्होंने देखा होगा कि उन भारत सरकार के अधिकारियों ने, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने आकर के उन ब्लॉक्स में न केवल लोगों में जन जागरण का काम किया, एक अवेयरनेस बिल्डिंग का काम किया, उसके साथ साथ में वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग के या रेन वाटर के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए मोटिवेशन किया, अफोरेस्टेशन एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो मोटिवेशन किया, और हमने देखा कि उसका एक बहुत जबरदस्त इंपैक्ट उन 256 जिलों में के 2836 ब्लॉक्स में आया। मोटे तौर पर कमोवेश हम सबको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पानी की इस चिंता से आज जैसे सारी दुनिया व्यथित है, उसी तरह से भारत में भी जो है लोगों के मन में एक आशंका और चिंता इसके कारण से खड़ी हुई है। तो एक तरफ पॉलिटिकल विल और ड्राइविंग फोर्स इसको चला रही है, और दूसरी तरफ आवश्यकता जनिक जो है चेतना भी लोगों में जागृत हो रही है। मैं ये मानता हूं कि ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टेक्निकल विषय पे श्रीराम वेदरे जी ने अभी आप सबके साथ में चर्चा की होगी, इनका एक लंबा अनुभव है। इन्होंने राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में, जो लोग राजस्थान में पुराने लोग काम कर रहे हैं उन सबको निश्चित रूप से जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के माध्यम से इन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत इंपैक्टफुल काम किया था। कुछ विषयों पर चर्चा हमारे मिशन डायरेक्टर मिस्टर अशोक कुमार भी आपके सामने करने वाले होंगे। कुछ विषय इन्होंने प्रारंभिक प्रस्तावना में आपके सामने रखे होंगे। मैं उन सारी टेक्निकल निटिग्रिटीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो कार्यक्रम आज हम आप सबके सामने कर रहे हैं, ऐसा लगभग देश के, अब मैं ये कह सकता हूं कि हमने अधिकांश स्टेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ में ऐसा राउंड ऑफ डिस्कशन, उनके साथ में इंटरेक्शन लगभग पूरा किया है। और इसको करने के पीछे जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है, मैं ये मानता हूं और अब तक के मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी अब इस दिशा में कहीं ना कहीं कमोबेश कुछ न कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार इसके बारे में चिंतित है, काम कर रही है, राज्यों की सरकारें और राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अनेक राज्यों में बहुत इंपैक्टफुल काम कर रहे हैं। अगर मैं पुरानी चर्चा करूं, जैसा मैंने अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान का उल्लेख किया, उसी तरह से तेलंगाना में जो है इस तरह से काम हुआ है, आंध्र प्रदेश में इस तरह से काम हुआ है, गुजरात में सुजलाम सुफलाम में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब से उन्होंने शुरुआत की। जलयुक्त शिविर जो है वो महाराष्ट्र में बहुत इंपैक्टफुल वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर स्ट्रक्चर्स के डीसिल्टिंग पे बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ है। बहुत सारे एनजीओज को लेकर के और पीपल्स पार्टिसिपेशन में भी इसमें इंश्योर करने के लिए किया गया है। तो मैं मानता हूं कि आप सबने बहुत सारा काम न केवल इसमें किया है बल्कि कर भी रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। लेकिन हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, विभिन्न राज्यों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। हम एक दूसरे की गुड प्रैक्टिसेज, बेस्ट प्रैक्टिसेज, जो अचीवमेंट हमने किए हैं, कोई नया मॉडल हमने डेवलप किया होगा, उसके बारे में चर्चा करें ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। और इसके साथ साथ में जो इसमें रोड ब्लॉक्स आते हैं, जो इसमें प्रॉब्लम्स आपको ग्राउंड पे काम करते हुए आती है, या आपकी तरफ से कोई लगता है कि एक बहुत बेहतर सुझाव है कि इसको अगर इस तरह से ट्वीक कर लिया जाए तो ये और भी ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है या और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अनेक जिलों में बहुत श्रेष्ठ काम हुआ है। मैं उदाहरण देके भी कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिलाधिकारी के रहते हुए काम किया और वो बहुत इंपैक्टफुल और लॉन्ग लास्टिंग काम हुआ है। मैं ये मानता हूं कि ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत करके इन विषयों को समझ सकते हैं, इस विषय की डेप्थ को में जा सकते हैं, अपने यहां पर हमको किस तरह से काम करना है इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं।
मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले एक विषय आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। देखिए, ये एक ऐसा समय है जब ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवेयरनेस बनी है, दूसरा पॉलिटिकल विल स्टेट्स और सेंटर दोनों जगह अभी इसको लेकर के है, नीड ऑफ द आवर भी है, और तीसरा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी जैसी आज और अभी वर्तमान के इन 2-3 वर्षों के लिए है, ऐसी शायद न भूतो न भविष्यति ऐसी परिस्थिति है। आज नरेगा में 60% एक्सपेंडिचर जो है वो 65% एक्सपेंडिचर एनआरएम रिलेटेड एक्टिविटीज में हो, इसकी बाध्यता है, टाइड अप है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका मार्गदर्शन भी राज्यों को भी और यहां रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी रहता है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज में होना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन की बहुत बड़ी ग्रांट ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपया एनुअली जो है पूरे देश भर के पंचायती राज संस्थान के लिए वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए टाइड अप है। नरेगा का ग्रांट अगर मैं पिछले साल का बजट देखूं, 1 लाख करोड़ बजट था, 65,000 करोड़ रुपया उसमें होता है, 15,000 करोड़ रुपया हमारे पास में 15th फाइनेंस कमीशन का आता है, 15,000 करोड़ रुपया हमारे पास में सैनिटेशन रिलेटेड ग्रांट हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और उसके रिचार्ज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूटिलाइजेशन का कंपोनेंट भी है। स्वच्छ भारत मिशन के में सस्टेनेबिलिटी और ग्राउंड और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट थ्रू रिचार्ज थ्रू ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू सूवेज ट्रीटेड वाटर, उसका कंपोनेंट है और उसका भी लगभग 6-7 हजार करोड़ रुपए हमारे पास में है। इस और जल जीवन मिशन में भी सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर हमको जो है गैप की फंडिंग, वायबिलिटी गैप जो है उसकी फंडिंग का प्रोविजन हमारे पास में है। तो इन वेरियस कंपोनेंट्स और हेड्स में जो हमारे पास में पैसा अवेलेबल है, इसको कन्वर्ज करके इस अभी जो मोमेंटम बना है, उस मोमेंटम को मटेरियलाइज करने के लिए, धरती पर उतारने के लिए हमारे पास में ये एक अवसर है। और मैं ये मानता हूं हर एक जिलाधिकारी जो जिले में 2 साल के लिए पोस्टेड रहता है, वो अपने किसी न किसी अचीवमेंट के लिए, किसी न किसी अच्छे या बुरे काम के लिए, किसी न किसी घटना के लिए आने वाले जो है दशकों तक उस शहर में याद किया जाता है। ये हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये हमारे सामने एक नीड ऑफ द आवर भी है। मैं ये मानता हूं कि अगर हम क्यूमुलेटिवली सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को, इस समय की आवश्यकता को समझते हुए और पॉलिटिकल विल है ऐसा जानते हुए हम इस अपॉर्चुनिटी को अगर कंसोलिडेट करते हैं और इसको मटेरियलाइज करके ग्राउंड पे उतार सकते हैं, तो न केवल हम आने वाली पीढ़ियों को सस्टेनेबल फ्यूचर दे सकते हैं, अपितु यू पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर्ड फॉर डिकेड्स for this herculean thing what you are what you are going to do। मैं इसी बात के साथ में आप सबको के साथ में अपनी चर्चा को समाप्त करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि इट शुड रिमेन एज ए इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, और मैं आप लोगों की चर्चा को, आप लोगों की बातचीत को, आप लोगों के अनुभव को सुनूं, समझूं। मैं इसी पॉइंट पर, इसी जगह पर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, ये जानते हुए कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको बधाई देते हुए कि हम इसे एक अवसर के रूप में लें और इस चुनौती को पार करने के लिए एक अवसर ऐसा समझते हुए हम सब लोग काम करें, ताकि हम देश को एक जल समृद्ध भविष्य दे पाएं। देखिए, हम चाहे 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाने की बात करें, चाहे हम नया भारत बनाने की बात करें, चाहे हम समृद्ध शक्तिशाली संपन्न भारत बनाने की बात करें, चाहे हम क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट को मिटिगेट करने की बात करें, जल समृद्धि के बिना ये सारी चीजें दिवा स्वप्न है, डे ड्रीम होंगी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। तो हमको सस्टेनेबल फ्यूचर अगर देना है देश को, तो हमको जल समृद्धि पे काम करना पड़ेगा। एंड बीइंग कस्टोडियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप सब लोग अपने आप को, मैं मानता हूं कि अपने जिले के एक कस्टोडियन है। आपको इस विषय को लेकर के गंभीरता के साथ में, और अधिक गंभीरता के साथ में काम करना चाहिए। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं आप सबको एक बार फिर, आपने जिस तरह से इस आपदा के समय में अपने क्षेत्र को संभाला है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद मंत्री जी। अभी मैं चाहूंगा कि एक एक स्टेट से कुछ लोग जो अपनी तरफ से बात करना चाहें, कुछ बताना चाहें जो आपने किया है। इट शुड नॉट बी लाइक रिपोर्टर्स
कि हमने ये हमारे जिले में हमने ये किया, इतना पानी बनाया, इतना हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, इतने हमने वाटर जो है पेड़ लगाए. इन स्पाइट ऑफ टेलिंग अबाउट दिस, हमने कोई पर्टिकुलर नई चीज को कंसीव किया, उसके ऊपर हमने काम किया, उसका इंपैक्ट आया, या हमने धरातल पर जब काम करना शुरू किया, जैसा मैंने कहा, तो हमारे सामने इस तरह का चैलेंज आया, इसको दूसरे लोग किस तरह से वहां अगर आया और उन्होंने इस चैलेंज को किस तरह से मीट आउट किया है, उसको लेकर के हम सब लोग चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, वहां से कोई व्यक्ति, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से कोई भी जो इसके बारे में चर्चा करना चाहे वो बात करना प्रारंभ करें. वहां से हम शुरू करते हैं, बाद में आगे हम तेलंगाना से बात करेंगे, देन गोवा, दमन दीव एंड राजस्थान. सो स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. Somebody wish to contribute something? पीयूष है. राजू, हु इज द स्टेट नोडल ऑफिसर, आप कुछ बताएंगे? अच्छा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे काम हुआ उसके बारे, उसी के डीएम्स को. इवनिंग सर. So I'm Piyush from District Anantnag, sir. नमस्कार. पीयूष गो अहेड. सर, सबसे पहले सर ये मौका देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं सर. इससे पहले सर मैं ज़िला उधमपुर में था, तो जब मेरी मुलाकात जी अशोक सर से हुई थी, और ज़िला उधमपुर में सर हमें सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था. एक प्रोजेक्ट था सर जीवी का, जिसमें सर वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे. एक ऑब्जर्वेशन सर जो मेरी ग्राउंड में रही थी पुराने ज़िले में, क्योंकि अब मैं कश्मीर विभाग में हूँ सर, सबसे बड़ा जो रोल एक कन्वर्जेंस प्ले करता है सर, उस चीज़ को हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है. कई डिपार्टमेंट्स की जैसे स्कीम है, पहले प्रेजेंटेशन में भी एडवाइजर सर ने बताया, कन्वर्जेंस का एक बहुत अहम पहलू रहा था. जीवी का प्रोजेक्ट भी इसी कन्वर्जेंस मॉडल पे बेस्ड था, जिसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सबके कुछ कुछ कंपोनेंट्स को हमने रोपिंग करके एक ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया था. ना सिर्फ सर उस एरिया के किसानों को फायदा मिला था, बल्कि उनको राउंड द ईयर इरिगेशन फैसिलिटीज में भी इजाफा हुआ था. जो एक सिंपल सेरल बेस्ड कल्टीवेशन करते थे, वो कैश क्रॉप पे भी शिफ्ट हुए कुछ देर में, जिनकी उनकी आमदन में भी काफ़ी इजाफा हुआ. तो मैं समझता हूँ सर ये पूरा जो मिशन है, अगर हम कन्वर्जेंस मोड में जैसे डिस्ट्रिक्ट्स पे कन्वर्जेंस की कोशिश की जा रही है आपके दिशा निर्देश के मुताबिक, उसका ज़रूर सर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जाएगा. और ज़िला अनंतनाग में भी सर हम इस तरीके का जो जल केंद्र है सर, उसको हेडक्वार्टर पे कलेक्ट्रेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी आए एक हम सिंबल के तौर पे उसको प्रोजेक्ट करें. नमस्कार सर. थैंक यू. तो पीयूष एक बार बताएंगे आप, जैसे आपने वो टैंक के नीचे वो जियोथर्मल वो प्लास्टिक लगा के बताया ना, उसके बाद एक बार थोड़ा बताएंगे सर. सर जीवी का प्रोजेक्ट में बेसिकली हमने वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जिसमें प्लास्टिक शीट को इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली फॉर वाटर स्टोरेज. पर्पज ये था सर, जो जिला उधमपुर था, पिछला जिला था मेरा, उसमें रन ऑफ वाटर जनरली जम्मू कश्मीर में कुल्स जिसे हम छोटी स्ट्रीम्स बोलते हैं सर, वो बहुत ज़्यादा थी, पर वो सारा पानी रन ऑफ होता था. तो उस पानी को सर हमने कंजर्व स्टोरेज करने के लिए एक बड़े 2 डायमेंशनल बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए थे सर, 2 डिफरेंट डायमेंशंस के थे. जिला उधमपुर में सर कई सारे फार फ्लंग एरियाज भी हमारे रहे हैं, जिस एरियाज में इस तरह के प्लास्टिक शीट पॉन्ड बहुत सक्सेसफुल रहे, और ना सिर्फ सर वो पानी स्टोर कर सकते थे, बल्कि उसके बाद हम उनको ड्रिप इरिगेशन के साथ हमने नियरेस्ट फील्ड्स के साथ कनेक्ट किया. तो 5 कंपोनेंट सर हमारे इस प्रोजेक्ट के अंडर थे: प्लास्टिक शीट पॉन्ड, ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस और सर वर्मी कंपोस्ट यूनिट. इन सबको सर एक इंटीग्रेटेड यूनिट करके हमने किया था. और उधमपुर ज़िले में सर हम काफ़ी एरियाज़ में इसको रेप्लिकेट कर पाए, और ये एक छोटा यूनिट था ताकि हम फार्मर को क्लस्टर मॉडल पे भी ये दे सकते थे. सपोज सर हमने ये मॉडल रखा था, 1 कनाल लैंड के पीछे हम एक ड्रिप इरिगेशन सेट देते थे, तो अगर 5 हैं तो हम उसको कन्वर्ज करके एक बड़ा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे. तो इस तरीके से सर काफ़ी उस एरिया में जहाँ जहाँ स्कोप था हम उसमें अपना योगदान दे पाए सर. थैंक यू पीयूष. बहुत अच्छा है पीयूष जी. Yes, sir. Anybody else from Jammu and Kashmir?
गुड इवनिंग सर, आई एम डिप्टी कमिश्नर रजौरी सर। हमने इसमें वुमेन वाटर कंजर्वेशन क्लब्स बनाए हैं सर, और अभी तक 50,000 लेडीज को रजिस्टर किया है सर। उनके लिए अलग से ऑफिस में एक सेल बनाया है सर, और जब भी पंचायत में जाते हैं तो वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड सर जो अवेयरनेस है या जो कंजर्वेशन के हम काम कर रहे हैं सर, तो उनको हमने फोरफ्रंट पे रखा है सर। ये एक नया इनिशिएटिव लिया कोई ऐसा आपने अपने विलेज का एक कंप्लीट वाटर प्लान जैसा बनाया है क्या, जिसमें हम वाटर बजटिंग कर सकें? इतना पानी आता है, इतना पानी की हमको रिक्वायरमेंट है, इतना पानी बरसात में आता है, इतना पानी बरसात के बाद की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि पहाड़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पानी आता बहुत है और जाता भी बहुत है, बचता कुछ नहीं है हमारे पास में। सर हमने ग्रे वाटर को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और ग्रे वाटर को टैप करने के लिए जो आई थी गाइडलाइंस, उसके अंदर सब 2 विलेजेस को हमने लिया सर, हम बना रहे हैं सर। मुझे लगता है कि इस तरह के मॉडल क्रिएट करना चाहिए कि हम बरसात के पानी को रोक सकें और रोक करके उसको बाद में रीयूटिलाइज कर सकें, जैसे अभी एक्स कलेक्टर अनंतनाग आपको बता रहे थे। इस तरह की स्कीम्स पर हमको और ज्यादा जो है पैशनेटली काम करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने 50,000 लोगों को जोड़ा है। अनडाउटेडली अनटिल अनलेस इट बिकम्स ए पीपल्स मूवमेंट, जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। जनता जब खुद से इसको ओन कर लेगी कि नहीं, ये पानी बचाना, पानी संरक्षित करना, पानी को ठीक से उपयोग करना, रिसाइकल करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, ये सब हमारा काम है, ये सरकार की योजना है, ये भाव रहेगा तब तक ये फेल होगा। जब ये हमारा काम है, जनता ऐसा मान लेगी तो निश्चित रूप से ठीक होगा। तो जितने ज्यादा लोगों को इसके साथ में जोड़ा जा सकता है उस पर काम करना चाहिए। हमने भी यहाँ पे अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है कि हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ में एक MOU किया हुआ है। जितना भी नेहरू युवक केंद्र की पूरा जो देश भर की यूथ की टीम है, इट इज इनटू मिलियंस, उस सारी टीम को इस काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। वी गिव देम फंडिंग आल्सो, हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को उसके लिए पैसा भी दिया है। तो इस पैसे का, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो इसके साथ में हमारे भागीदार बन चुके हैं। ये आपके जिलाधिकारियों के सबके पास में एक रेडीमेड फोर्स अवेलेबल है यंगस्टर्स की, उसको आपको मोटिवेट करना है, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है। वो जो है आपका ये संदेश गांव-गांव में पहुंचे, उनमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको स्मॉल इंसेंटिव्स दे करके उनको जो है आपकी इन एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए आपके साथ में जुड़ करके एक टास्क फोर्स के रूप में वो काम करें। इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। चलिए, फ्रॉम स्टेट ऑफ तेलंगाना, एनीवन? स्टेट ऑफ तेलंगाना, शरद, अच्छा हरिचंदना, आर यू देयर? बहुत फ्लड्स है आज की, बहुत बारिश हो रही है। गोवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गोवा, साउथ गोवा, दिख रहे हैं मुझे? आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर अस? Yes, sir. Good evening. Very good evening. Yeah, please. Sir, in South Goa, we have done list of works like development of ponds, improvement of ponds, then sites, sluice gates, desilting, construction of protective bunds on various locations, sir. और rejuvenation of some lakes, de-weeding भी किया है, geotagging of registered wells के लिए in all locations of talukas has been moved to the WRD. Then major work ऐसा हुआ है वो है desilting of river Sal, sir, which is the biggest river in the state. और उसका there were a lot of complaints, NGT में भी उसका केस हुआ था कि there is lot of pollution in the river. So that has been desilted for a stretch of about 9 kilometers. और बाकी जो डेटा एंट्री के लिए जो अभी बोला गया है, सॉरी नहीं, जो आपका क्या अनुभव आया है उससे, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट इम्पैक्ट दैट डीसिल्टिंग हैव क्रिएटेड? No, it has got a very good response, sir, and we are planning to do it on a regular basis, year to year.
So that because there is no. Can you all, there is a suggestion from my side to all of you. Can you identify one small river or rivulet which can be identified and rejuvenated? ऐसे बहुत सारे आपको स्मरण होगा, अपने बचपन में आपने ऐसी बहुत सारी नदियां देखी होंगी, छोटी छोटी नदियां जो हमारे परिवेश में बहती थी लेकिन अब गत खत्म हो गई। क्या हम उनमें से किसी एक या दो नदी को अपने एरिया में आइडेंटिफाई करके उसको रिजुविनेट कर सकते हैं, उसको जो है पुनर्जीवित कर सकते हैं क्या? ऐसे देश में हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने काम किया और उस नदी को पुनर्जीवित कर दिया। 100, 100, 125 किलोमीटर की नदियां वापस जो है उनकी लाइफ लौट गई है। देखिए, एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अब ऐसा समय आ गया है कि हम पानी को अलग अलग करके नहीं देख सकते। एंड नाउ नो फॉर्म ऑफ वाटर, मे बी इट इज अ ब्लैक वाटर, मे बी इट इज अ वाटर, ग्रे वाटर, सुवेज वाटर, नो फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी आइडेंटिफाइड एज वेस्ट वाटर। ये वेस्ट वाटर टर्मिनोलॉजी जो है इसको खत्म करना पड़ेगा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज ए यूजफुल थिंग। इस कॉन्सेप्ट पे हम सबको, इस विचार पे काम करना पड़ेगा और लोगों को भी इसी तरह से काम में लेना पड़ेगा। साथ साथ में क्या है कि हम आज तक हमेशा जो है इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वाटर, सरफेस वाटर को, वाटर अंडर द ग्राउंड, वाटर इन द रिवर्स, इन तीनों को हम अलग अलग करके आइडेंटिफाई करते थे, डील करते थे। सी, इट इज टेक्निकली प्रूव्ड एंड नोन टू वर्ल्ड वाइड कि अब दुनिया को समझ में आने लग गया है कि ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आपके वेटलैंड्स में पानी रहेगा, तालाब में पानी रहेगा तो आपकी नदी बहेगी, आपकी नदी बहेगी तो जमीन में पानी जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होएगा। तो इन सब कंपोनेंट्स को साथ जोड़ करके हॉलिस्टिकली अपने डिस्ट्रिक्ट को भी प्लान करना चाहिए। हर एक गांव की अलग अलग इस तरह की प्लानिंग आपको करना चाहिए। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। Anyone else from Goa? Then Damandiu. गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। सर, मैं संदीप कुमार सिंह, कलेक्टर दादरा नगर हवेली। सर, दादरा नगर हवेली में लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताना चाहूँगा सर। सर, 2 साल पहले जब यहाँ पर जल शक्ति अभियान स्टार्ट हुआ तो उस समय, उसके बाद जो हमने यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ की, उनमें से जो 3 जो हमने इनिशिएटिव लिए सर, उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला जो है सर, इसमें हमने सैटेलाइट के माध्यम से जो है हमने लोकेशन आइडेंटिफाई किए, जो हमारे पास में जीआईएस मैप था कि कहाँ कहाँ पे हम लोग चेक डैम बना सकते हैं। तो वैसे टोटल कुल 26 लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किया और उसका जो है हमने बाइजैक अहमदाबाद से वेटिंग कराया और वहाँ पर हम लोग चेक डैम्स बना रहे हैं और उसको हम लोग प्रोजेक्ट में ले रहे हैं और सीरीज ऑफ चेक डैम्स हम लोग बना रहे हैं। बिकॉज सर, यहाँ पे वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होता है और बारिश के टाइम में जो है पानी जो है कई बार वहाँ से फ्लो होकर निकल जाता है और जो मार्च अप्रैल का महीना होता है उस टाइम पे लोगों को करीब करीब 3-4 किलोमीटर तक मटके पे सर पे लेके पानी लेके जाना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर चेक डैम बनाएंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। पास में भी हमने कुछ चेक डैम्स बनाए थे, तो 26 नए चेक डैम्स लिए हैं सर। इसके अलावा सर, जो हिली एरिया है जहाँ पर कि जस्ट जहाँ पर पहाड़ से जो नीचे का जहाँ पर प्लेन स्टार्ट होता है वहाँ पर रन ऑफ काफ़ी ज़्यादा होता है पानी का। तो उसके लिए सर इंजेक्शन वेल हम लोग सर यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसमें कि वी वायर टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल 19 लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किया है। गांव में जो वेल्स होते हैं उसका हम लोगों ने 1 साल पूरा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कि उसमें पानी का कितना कंटेंट रहता है वो पूरा 1 साल हमने मेजर किया है। इस साल हमने वो वेल लगाया है और अगले साल उसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि जो इंजेक्शन वेल लगाने के बाद में उसके वेल में कितना पानी रह रहा है। तो अगर ये 18 या 19 लोकेशन पे सक्सेसफुल होता है तो उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी जगह है वहां पर इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे सर। सर, तीसरा जो हमने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया सर, वो बोरीबंद का लिया सर। एक्चुअली सर, नरेगा में जो भी फंड हमारे पास में आया और जब जल शक्ति अभियान स्टार्ट हुआ उसके बाद में सर हम लोगों ने जो छोटे छोटे रिवुलेट्स थे जो विलेजेस से होकर आ रहे थे, वहां पर हमने सिर्फ जो प्लास्टिक का जो सीमेंट का बैग आता है उसके अंदर में बालू या मिट्टी भर के उसको हम लोगों ने वहां पे रखा, जो कि बहुत ही सस्ता होता है। उससे सर काफी पानी रुका और जो आने वाला जो लीन पीरियड होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी का जो महीना होता है, जनवरी फरवरी तक पानी उसके अंदर में रुका है सर, और उसको लोगों ने वहां पर इस्तेमाल किया है और उनका जो पानी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है और प्लस वो पानी भी परकुलेट होकर नीचे जा रहा है। तो
जो सेकंड ईयर का जो स्टडी होगा उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि जो हम लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसका कितना रिजल्ट रहा है, इम्पैक्ट रहा है, फिर इन्हीं चीज़ों को और आगे हम लोग एक्सपैंड करेंगे सर। चलिए बहुत अच्छा है। कलेक्टर ड्यू। नमस्कार सर। सर दीव में बीइंग एन आइलैंड टेरिटरी सर हमने जितने भी हमारे यहाँ पे वेल्स हैं और सर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का इंस्टॉलेशन करवाया है, मगर सर हमें चैलेंज ये फेस हम लोग करते हैं कि डीपनिंग का स्कोप नहीं रहता है सर बीइंग इन एन आइलैंड, बिकॉज 2 मीटर से ज़्यादा जाने पर ही यहाँ पे खारा पानी सर ऊपर आ जाता है। तो ये कंस्ट्रेंट को देखते हुए हमें सरफेस वाटर पर ही कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़ते हैं। सो दिस इज दीव में सर हमारा पाइप्ड वाटर कनेक्शन ही है गुजरात से, तो हम लोग का यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी हम लोग वी आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीटेड वाटर सप्लाई ओनली कम्प्लीटली। तो ये बीइंग एन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट सर हमारा ये चैलेंज हम लोग फेस करते हैं। दीव वाज वन ऑफ द टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स इन फेज 1 ऑल्सो। तो उस टाइम में भी हमने काफ़ी 2 साल से हम सर काफ़ी इनिशिएटिव्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा है, आप लोग देखिए जिस तरह की आपके यहाँ पे जो है ग्राउंड सिचुएशन है, आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे कोई इम्पैक्टफुल काम बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सी वाटर इंग्रेशन बहुत ज़्यादा है। बट हम वाटर हार्वेस्टिंग के कंपोनेंट पे मैक्सिमम काम करें। हम जो है पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बरसात के पानी को रोक सकते हैं। आपके पास में एक चुनौती है कि ग्राउंड में पानी नहीं है, तो दूसरी एंड पे आपको जो है नेचर ने यू आर ब्लेस्ड विद इनफ ऑफ रेनफॉल्स। तो हम उसको पानी को जो है मैक्सिमम पानी को कैसे रोक सकते हैं अपने आइलैंड स्ट्रक्चर जो आपका आइलैंड टेरिटरी है उसमें, ताकि उस पानी को हम रीयूटिलाइज कर सकें बाद में। एक एक बूंद पानी को रोक करके उसको हम जो है उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, उसके लिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, जो रूरल हाउस होल्ड को एमजी नरेगा के थ्रू किस तरह से इंसेंटिवाइज करके उनके यहाँ बनाया जा सकता है। If you see in Rajasthan, state of Rajasthan, in western Rajasthan part, collectors of various districts of Rajasthan also they are also there. I come from the westernmost part और जहाँ सबसे कम बरसात होती है। Since हमारे यहाँ जो है वो सैंडी सॉइल है, तो जनरेशन से हमारे यहाँ पर जो है टंका ऐसा खोदा जाता था 10, 12, 15 फुट का एक डेप्थ का एक वेल सीमेंटेड या चूने से बना करके पक्का बना करके रखते हैं। उसमें सारा पानी बरसात का एवरी ड्रॉप विच फॉल्स ऑन द पक्का सरफेस घर की छत पे या घर के आंगन में, वो सारा उसमें इकट्ठा करते हैं। साल भर उस पानी से घर का काम चल जाता है। 100 mm अगर कहीं बरसात होती है और अगर 1000 स्क्वायर फीट की छत हो तो 1 लाख लीटर पानी हार्वेस्ट किया जा सकता है उससे। तो वो पानी इस तरह से के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो है नरेगा के साथ में इसके कन्वर्जेंस की स्कीम को हम काम पे लेते हैं, तो नरेगा का पैसा कुछ पैसा दूसरी स्कीम से डबल करके और इंडिविजुअल अपना लेबर कंपोनेंट बना करके मिला लेता है और उसका एक टांका बन जाता है और वो उसका परमानेंट सोर्स हो जाता है। Because you can find these type of tankas of 200-300 years पुराने भी आपको गांव के घरों में मिल जाएंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये हो सकता है इससे रिलेटेड अभी अगर सीमेंटेड नहीं बनाते हैं तो प्री फैब्रिकेटेड आता है स्ट्रक्चर, ऐसा उसमें फिट इन किया जा सकता है। इवन कोई ऐसा फूड ग्रेड प्लास्टिक का अगर HDPE का हो तो उसको भी यूज किया जा सकता है। ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे काम करना चाहिए। उससे शायद मुझे लगता है कि हमारे पास में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का क्वांटम बढ़ जाएगा। इस पे हम काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा जी सर। इसी स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए सर सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हमने 217 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करी है सर, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी करा है और 200 और डीएमसी जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी के बायलॉज में भी चेंज किया है, 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जो भी घर है उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है सर। तो यही सरफेस वाटर कलेक्शन के इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं सर। चलिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड। राजस्थान। Good evening, sir. I am Collector Narayanpet, sir, from Telangana. Yeah. There was some disruption, sir. May I speak, sir? Yeah, please. जी सर। सर like most of my colleagues have shared, तेलंगाना में भी बहुत ज़्यादा हम लोग water harvesting पे we have taken up on a mission mode, sir, here. So यहाँ पे actually before the Catch the Rain campaign has started itself, from the last 7 years we've been doing massive plantation program
उसके अंदर ही अंडर मनरेगा वी आर डूइंग ट्रेंचेस, स्टैगर ट्रेंचेस इन ऑल द हिलक्स एंड हिली एरियाज सर. सो जो नीचे ऊपर से हिलक से आएगा वो नीचे एक बड़ा सा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं. Apart from that, unique initiative wise, sir, Telangana has lot of step wells. और इन step wells के लिए restoration के लिए हम massive different जिले में जहाँ पे है वहाँ पे we are trying to see that all of these step wells are not only preserved but all the traditional water system is restored. तो जहाँ पे ये स्टेपल्स हैं उनको हमने पहले कैटलॉग किया है अपने जैसे आपने अभी सजेस्ट किया था GIS मैपिंग जैसा, वैसे ही हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज वी हैव मैप्ड दी स्ट्रक्चर्स एंड वन बाय वन वी आर स्लोली रिस्टोरिंग देम from the state government initiatives, from CSR funds and also from the municipalities also in some areas where they are there. Other than that, sir, एक कंपोनेंट हमने इसमें अब की बार आप सब लोगों से और भी एक्सपेक्ट किया था, टू आइडेंटिफाई द वाटर बॉडीज एंड जियोटैग देम. आपके जिले में कितनी वाटर बॉडीज, द स्मॉलेस्ट वाटर बॉडी से लेकर के बड़े तक जो भी है, उस सबको जियोटैग करके उसका पिक्चर सहित अगर अपलोड कर देंगे इस डैशबोर्ड पे, तो हमारे पास में एक रिपोजिटरी होगी देश भर की. हालांकि हम माइनर इरिगेशन सेंसस के माध्यम से उसको रिवैलिडेट करने का भी कोशिश करेंगे कि हमारे पास में एक रिपोजिटरी होगी कि देश में कितने वाटर बॉडीज हैं. आज अगर हम बात करें, हम लोग चर्चा करते होंगे हैदराबाद में निजाम शाही के समय में कितने टैंक्स हुआ करते थे, आज उसमें से ग्राउंड पे कितने अवेलेबल हैं. तो बेंगलुरु सिटी में, पीपल से चेन्नई में, बेंगलुरु में थाउजेंड्स ऑफ लेक्स थी जो आज जो हैं वो खत्म हो गई हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है. See, now we understand the importance of those water bodies. अब हमको पता है कि हमारी इस डेवलपमेंट की ग्रीड ने और नीड ने दोनों ने मिलकर के हमें कितना जो है डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट हम सबको दिया है. सो इट इज नाउ टाइम कि अगर आप लोग ये सारी जो है ये इंफॉर्मेशन को अभी हम कलेक्ट कर लें, उसको साथ में उनको कोरिलेट कर लें विद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, पुराने रिकॉर्ड्स में क्या थी और अभी उनकी क्या पोजीशन है. एक आध तहसीलदार को या किसी को इस ड्यूटी पे लगा करके सारे डिस्ट्रिक्ट का अगर इसको आइडेंटिफाई कर लें और इस जल शक्ति अभियान में उनको क्रॉस वेरीफाई कर लें, मैं ये मानता हूं कि इससे हमारे पास में फॉर फ्यूचर टू सेव ऑल दीज थिंग्स, हमारे पास में जो है इन सब चीजों को दिखाने के लिए और इन सब चीजों को आने वाले भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए कि जो है हमारी वाटर बॉडीज गायब हो जाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर इसके माध्यम से बन सकता है. चलिए, धन्यवाद. एनीबॉडी एल्स फ्रॉम तेलंगाना? जो दर्ज नहीं है वो अपने को. Sir, good evening, sir. This is Bharati, sir, Collector Mancherial from Telangana. Am I audible, sir? Yes, please. Sir, apart from whatever my colleague said, sir, Telangana has taken up some more major initiatives, sir. So much prior to the initiative of JSACTR Abhiyan, sir. So state of Telangana has taken up massive program of restoring the tanks, sir. So this was basically a desiltation program of all the tanks in Telangana, sir. So we have, Telangana is a state of tanks, sir. So we have around more than 46,000 tanks, sir. So we took up in 4 phases, sir. So where it was a program for Mission Kakatiya, sir. It is called as Mission Kakatiya. Sir, इसमें not just desiltation करना, sir. The aim was, the objective was also to increase the water storage capacity of all the tanks, sir. So today we see that because of, as you were saying, sir, erratic rain के वजह से जैसे हम लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है, so अब हमारे tanks इतने मतलब इनका water storage capacity बढ़ गया है, sir. So today because of this, so we are able to store more capacity of water, sir. एंड इसके वजह से सर नॉट जस्ट बिकॉज इट वाज अ विन विन सिचुएशन, सर. एक तरफ हम लोग वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ ये जो सिल्ट आ रहा था उसको फॉर्म में अप्लाई करते हुए वहां का फर्टिलिटी भी बढ़ा रहे थे, सर. इसके वजह से एक्चुअली तेलंगाना हैज बिकम नाउ द राइस बाउल ऑफ इंडिया ऑल्सो, सर. And the second thing, sir, one more major initiative was recharging the groundwater by constructing soak pit, sir. So हर घर से जो पानी बाहर आ रहा था, जिसको आप बोल रहे थे कि वेस्ट वाटर को वेस्ट वाटर के जैसे मत कंसिडर करो,
this every drop of water is important. So इसलिए सर हर घर से जो पानी बाहर आ रहा है उसके लिए हम लोग soak pits कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सर. इसके वजह से again so not just ground water is getting restored sir. So हर गांव आज dry और सुंदर दिख रहा है सर, और वाटर मस्कीटो ब्रीडिंग भी कम हो गया है सर, और ग्राउंड वाटर भी बढ़ रहा है सर तेलंगाना में. So these are major other two initiatives sir apart from afforestation. Carry on please. Yes sir, other two major initiatives I wanted to add sir. So these are other two major initiatives sir. Thank you. Mission Kakatiya and soak pit sir. Thank you. Sir, one more thing I wanted to give my input sir. So जैसे हम लोग catch the rain बात कर रहे हैं सर, जैसे मतलब हर बूंद का पानी भी important है, जैसे हम लोग focusing on catching the rain, so wherever it falls, whenever it falls. So along with that sir, we should also need to focus on saving the water also sir. जैसे सर अभी मैं बोल रही थी like बहुत सारे states में paddy grow करते हैं सर, which is very water intensive crop. So very right, very rightly said. बहुत अच्छी बात कही आपने. हमने देश में अब तक हमेशा सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर काम किया. नाउ दिस इज द टाइम जब हमको डिमांड साइड मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा. अभी आप प्राउडली यू वर सेइंग दैट तेलंगाना हैज बिकम राइस बाउल ऑफ द कंट्री, and your chief minister was also mentioning yesterday, last evening at this very same time to me that Telangana have outpassed state of Punjab also as far as the paddy is concerned. But I think this is not a very happy state for me. I don't wish that Telangana, a state like Telangana, which has more opportunities and more options, the more entrepreneurship and more exposure, and a dynamic chief minister you have, then you should not go on to rice and paddy. You should focus for other crops, horticulture crops, fruits, and then fruit-based the crops which can be exported, and we can save water. So the state of Telangana should also simultaneously work upon that. I understand and I do agree that under the leadership of KCR साहब आपने बहुत सारा काम सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे कर लिया. अभी थोड़ा डिमांड साइड मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए. ये स्टेट ऑफ राजस्थान. Inder, I can see you from Jodhpur. गुड इवनिंग सर. सर मैं सीओ जिला परिषद निवेदन कर रहा हूँ. जैसा श्रीमान ने सर फरमाया था कि यहाँ पर टाका बनाने की काफी पहले से परंपरा है, तो उसी के क्रम में सर इस साल में सर आपको अवगत कराना चाहूंगा कि लगभग पिछले 3 महीने में 1100 के आसपास टाके से निर्माणाधीन है हमारे. एक टाके सर स्टोरेज होती है, तो इनसे सर हमारी जो कैपेसिटी है लगभग 3 करोड़ 30 लाख लीटर के आसपास वाटर कंजर्वेशन होगा. दूसरा सर हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग है उनको ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत डेवलप करने का. उसमें सर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, अगर कहीं पे एरिया ज्यादा है तो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ सर टाका निर्माण प्लस प्लांटेशन का कार्य. इसमें सर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी ग्राम पंचायतों की जितनी भी बिल्डिंग है, खासतौर पर सर नई बिल्डिंग जो बनी है उनका सरफेस एरिया जो रूफ का है काफी ज्यादा है, तो उनके साथ हमने कंपल्सरीली टाका निर्माण लिया है सर. उसमें साथ में सर जो ग्राम पंचायत के लेवल पे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनको भी सर रूफटॉप वाटर से जोड़ने का काम किया है. सर हमारे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का आरसीटी कैंपस है, उनके साथ मिलकर भी सर हमने इस काम को आगे बढ़ाया है. तो उनके योगदान से भी सर लगभग हमने अभी तक 100 स्कूल्स को रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा है सर. दूसरा सर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसे मॉडल तालाब डेवलप करने का है. सर मॉडल तालाब के बारे में सर मैं अवगत कराना चाहूंगा कि काफी ग्राम पंचायतें तो ऐसी है कि गांव वाले खुद से योगदान करके महात्मा गांधी नरेगा भी साथ में जो श्रमदान है उसके तहत मॉडल तालाब डेवलप कर रहे हैं सर. तो कई जगह सर वाटर की क्वालिटी इतनी अच्छी है उस तालाब में कि लोग ना सिर्फ जानवरों के खुद के पीने के लिए भी उपयोग करते हैं सर. तो
और सर इन 3 इनिशिएटिव्स के बारे में सर मैं आपको सर बताना चाह रहा था। मॉडल तालाब सर, दूसरा टाका निर्माण, तीसरा ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। कई एरिया नहीं, इंदर सभी लोग पीते थे पहले, मैं भी अपने बचपन में वही पानी पीता था। अभी अब पानी आने लग गया नल में, सभी तालाब का पानी पीते थे। अभी भी ऑलमोस्ट हमारे वेस्टर्न राजस्थान में तो 10% पॉपुलेशन, 15% तो गांव में रहने वाले लोग आज भी तालाब पे डिपेंड करते हैं। जी सर। चलिए, एनीबडी एल्स राजस्थान में? सर मैं चेतन देवड़ा बोल रहा हूँ उदयपुर से। गुड इवनिंग। हाँ चेतन जी बताओ। सर एक तो हमने यहाँ जो एक तो सर हमने जितनी हमारी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज है सर, उसका सैटेलाइट इमेज से सर्वे करा के जियो टैगिंग कर लिया सर। 90% काम हमारा हो गया सर। करीब 26,300 से ज्यादा वाटर बॉडीज को हमने जियो टैगिंग कर लिया सर। अब अगले 10 दिन में इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके इसका एक्शन प्लान बना रहे हैं सर। इसका एक्शन प्लान बना रहे हैं कि किसमें क्या रिपेयर करनी, क्या स्ट्रेंथनिंग करनी है, ताकि उसको हम काम करा सकें सर। सर सेकेंडली जो जोधपुर बता रहे थे सर, हमने मॉडल तालाब, हर गांव में मॉडल तालाब का कॉन्सेप्ट लिया है सर। और हमारे लगभग सारी पंचायतें 652 जो ग्राम पंचायत है उन सब में मॉडल तालाब का काम हो गया सर। मैं पिक्चर्स नहीं बता पा रहा हूँ आपको सर। इतने अच्छे मॉडल तालाब बने हैं सर कि लोग वापस से उसका यूज करने लग गए सर पीने के पानी के लिए। आपका जिला तो वैसे ही यार, उदयपुर इज नोन फॉर द सिटी ऑफ, नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स सर। और ये देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं अभी जो बता रहा था ना कि आपके यहाँ पानी का, मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जो पिक्चर आपने लगा रखा है, ये लेक ड्राई हो गई थी, इसमें गाड़ी चलाई हुई है सर। बिल्कुल सर, 2005 में हुआ था। 2005 में इसमें गाड़ी चलाई हुई है। और अभी ये जो जितनी एक्टिविटीज पिछले दिनों में हुई है उसके कारण से अब ये बिल्कुल भी खाली नहीं हो रही है। तो इसलिए जो है ये एक लाइव एग्जाम्पल है सबके सामने, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसमें, कि एक बार अगर हम ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, रिवर रिजुविनेशन, अफॉरेस्टेशन, इन सारी एक्टिविटीज पे एक साथ में हॉलिस्टिक तरीके से काम करें तो वी कैन चेंज द सिनेरियो एंड वापस हम पुराने उस अतीत पे जो है वापस लौट सकते हैं। और ऐसे हंड्रेड्स थाउजेंड्स एग्जाम्पल हैं। हम लोग जब पानी की बात करते हैं, जहां कहीं भी मैं पानी के कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, बात करता था, लोग कहते थे मुझे कि इजराइल ने ऐसा कर दिया है। नो डाउट इजराइल ने डिमांड साइड मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया है, पर अगर सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे और जो है वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो है रीयूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर है, उसके ऊपर अगर बहुत अच्छा काम हुआ है तो ऐसे देश में थाउजेंड्स एग्जाम्पल ढूंढे जा सकते हैं। थाउजेंड्स ऐसे एग्जाम्पल हैं। राजस्थान में ही ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं जहां पे बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये दिस इज द टाइम जब हम सबको इसके ऊपर और ज्यादा कमिटमेंट के साथ में काम करने की जरूरत है। एनीवन एल्स राजस्थान से? सर एक नवाचार का मैं जिक्र करना चाहूंगा सर उदयपुर का। उदयपुर में ऐसे बहुत सारे गांव हैं सर जो बारिश के सीजन में कट ऑफ हो जाते थे, क्योंकि पूरा ट्राइबल टेरेन है सर, हिली टेरेन है। हमने यहाँ से एक नरेगा में उन सारे गांवों को जोड़ने का काम किया सर। और मैं क्लेम तो नहीं करता, पर आज इस बारिश के सीजन में कोई भी गांव कट ऑफ नहीं हुआ सर, लगभग सारे गांव जुड़े रहे सर। इसके साथ हमने सर वो जो कोजवे के साथ एनीकट दिया सर, जहां जहां भी फिजिबल था, ताकि लोगों को रास्ता भी मिल जाए और पानी भी सर वहाँ स्टोरेज हो जाए। हमने बिल्कुल पुलिया बना करके या नीचे पाइप लगा के उनको कोजवे नहीं दिया सर, इसको भी हमने काम किया सर। और जो एमजेसी की श्रीमान ने बात करी थी, जिसका अब नाम राजीव गांधी जल संचय हो गया सर, इसमें एरिया बेस्ड प्लानिंग करते हैं सर। और पूरे एरिया में जो बारिश होती है सर, उसको वहीं पर कैच करके उसका जो वो करते हैं सर। वाटर हार्वेस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट था सर। इसमें भी जिले में बहुत अच्छा काम हुआ सर। 6,174 जो काम हमने मंजूर किए हैं सर, उसमें से 3,500 कंप्लीट हो गए सर, और करीब 2,921 काम अभी चल रहे हैं। चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा चेतन। और कोई राजस्थान से किसी को वेरी सिग्निफिकेंट बात जो सबके सामने लानी हो? सर ये जयपुर से अंतर सिंह नेहरा आज कर रहा था सर। हाँ बताइए। हाँ, जयपुर से अंतर सिंह नेहरा जिला कलेक्टर आज कर रहा था सर। जयपुर में एक बहुत अच्छा काम जो फार्म पॉन्ड का बहुत अच्छा काम हुआ है सर। यहाँ पर अपने सभी ब्लॉक्स में लगभग फार्म पॉन्ड के माध्यम से सब्जी और कृषि का कार्य कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट। आई हैव विजिटेड मैनी
और ये बड़ा अच्छा काम है। यहाँ इसकी डिमांड भी काफी है, लोग जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से और इसकी काफी डिमांड होती है। तो उसमें यदि और थोड़ा सा पुटअप किया जाए तो काफी यहाँ पर मैक्सिमम लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा ऑफ लेट सर इस एरिया में भी जो छत वाले पानी को स्टोर करने के लिए स्पेशली जैसे कोटपुतली एरिया साइड में लोगों की डिमांड है कि वो पीने के पानी का जैसे बाग शेखावाटी हुई सर, आपके जो ये जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट वो थे उसमें तो पहले से ये पॉपुलर था। नाउ दे हियर इट इज आल्सो पिकिंग अप। तो यहाँ भी इसमें संदर्भ में और फंडिंग की आवश्यकता महसूस की। जहां भी अतर सिंह जी सैंडी सॉइल है ना, वहां आप इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो थ्रू पंचायती राज संस्थान, नरेगा का पैसा और 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा इसके साथ में डॉवटेल करके थोड़ा लाभार्थी अपना पैसा लगाए एज और लेबर कंपोनेंट उसके साथ में वो जोड़ दे, तो ये बहुत लो कॉस्ट में सैंडी सॉइल में बन सकते हैं। और ये लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जमीन के अंदर होता है, मॉइस्चर लेवल रहता है, इसलिए कभी भी वो फटता नहीं है। आपके जयपुर में जयगढ़ फोर्ट में जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप कलेक्टर हो जयपुर के, मुझे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, वो दुनिया में नायाब है। पूरी दुनिया में कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। 400 साल से वो जयगढ़ फोर्ट में गिरने वाली एक एक बूंद पानी ड्राइव होकर के थ्रू चैनल्स एक टांका में जाती है, विच इज सफिशिएंट फॉर 35,000 पीपल जो उस जयगढ़ फोर्ट में रहते थे, उनके लिए 12 महीने का पानी होता था। तो इसलिए वो जो है अपने आप में एक नया नमूना है। तो मुझे लगता है कि जयपुर में इस दिशा में हम बहुत सारा काम आगे भी कर सकते हैं। काफी किया सर, एनजीएसएम और ये जो आईडब्ल्यूएमपी में काफी इसमें काम किया सर। करीबन 204 जो वर्क कंप्लीट करके ऑन गोइंग है सर, रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज। पर जो मुझे अच्छा लगा जैसे वो ये था कि ये जो फार्म पॉन्ड का जो है ये बहुत ही पॉपुलर है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, फार्म पॉन्ड का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए somebody else, एक कोई और भी राजस्थान से। सर झुंझुनू से उमरदीन खान बोल रहा हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सर नरेगा का आपने जैसे जिक्र किया सर और बोला वाटर बॉडीज डेवलप करने के साथ साथ सर हमने यहाँ पर अपना खेत अपना काम के तहत करीब 10,000 जो पॉन्ड्स हैं उनको डेवलप करने का सोचा है। करीब 4,500 हमने सैंक्शन कर दिए हैं और उसमें से 4,000 में काम चल रहा है। वो करीब 25,000 लीटर पर पॉन्ड के हिसाब से कंजर्वेशन का कर रहे हैं। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है सर और अच्छा काम हो रहा है सर इसमें। सेकंड सर उसमें हमारी जो मनसा माता अरौली वाली बेल्ट है, इसमें जगह जगह चेक पॉन्ड्स चेक डैम्स बना के और एक बड़ा डैम इरिगेशन के माध्यम से बनाने का चल रहा है, बाकायदा सैंक्शन हो गया है और वाटर कंजर्वेशन करेंगे सर। हो सकता है उस बेल्ट में हम टूरिस्ट स्पॉट भी डेवलप करें सर। थैंक यू सर। खान साहब, मुझे लगता है कि झुंझुनू के काम को देख करके ये सारे जितने आपके कलीग्स बैठे हैं देश के लगभग 6 प्रांतों के, वो जितना इंस्पायर नहीं होंगे उतना आपके बैकग्राउंड को देख करके हो जाएंगे सर। थैंक यू सर। ये जो लिगेसी आपके पास में है उसको लेकर के बहुत सारे लोग एनवी होंगे सर। यहाँ चलिए बहुत पुराने कुएं हैं और उन सारे कुओं को सफाई करवाने के चल रहे हैं। हर गांव में हरडाणी में पुराने अच्छे जो कुएं हैं सर वो हैं, बाकायदा उनको कंजर्व करने का और उनको ठीक करने का काम भी नरेगा के तहत चालू किया है सर। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबने बहुत अच्छे इनपुट्स भी दिए हैं और आप लोगों की बात को सुन करके, आप लोगों के एनर्जी को फील करके, आप लोगों का जो एंथुजियाज्म है इसको लेकर के, आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड आई माई सेल्फ फील मोटिवेटेड दैट द यंगस्टर्स एंड द टीम लीडर्स की तरह आप जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और इस वाटर कंजर्वेशन और ओवरऑल पानी के सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर हम लोग इस कमिटमेंट को बनाए रखेंगे और इसके ऊपर और ज्यादा फोकस तरीके से, प्लान तरीके से, साइंटिफिक अप्रोच से काम करेंगे तो वी आर गोइंग टू बी रिमेंबर्ड एज द चेंज मेकर्स इन द कमिंग डेज और कमिंग ईयर्स। और आप सब लोग जो अभी एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हो, ये आप सब लोग और किसी विषय के लिए आपकी उपलब्धि के लिए याद किए जाएंगे तो ये मैं कहूंगा। लेकिन साथ साथ में कम से कम इस पानी के विषय में जो क्रांति आप लोगों ने की है, इसके विषय में आप दशकों तक अपने जिलों में जहां जो है
वो याद किए जाओगे और लोगों को भी ये संतुष्टि होगी, आपको भी ये संतुष्टि होगी कि यार हम जब कलेक्टर थे 20 साल पहले हमने जो फाउंडेशन रखा था उसके कारण से आज मेरा जिला जहां मैंने सर्व किया था वो जिला जो है आज वाटर सफिशिएंट जिला ऐसा बन पाया है। मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं। इस विषय पे काम करते हुए हमारा जो नेशनल वाटर मिशन है ये आपके साथ में पूरी तरह से पूरी ताकत से खड़ा है, पूरी ताकत से काम करने के लिए हम तैयार हैं। एंड लेट अस ऑल वर्क एज ए टीम वाटर। इसकी तरह हम सब लोग काम करेंगे तो हम सस्टेनेबल फ्यूचर और लाइवलीहुड आने वाले समय में देश को और देश के लोगों को दे पाएंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।